السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی وسیدنا وشفینا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، بعد عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات نے نعت و منقبت سماعت کیا، خطاب سماعت کیا، اور پروگرام کے آخری کڑی میں آپ نے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے جو آپ نے مشاہدہ کیا، دیکھا، واقعی قابل مبارکباد ہیں۔ دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبتیں اگر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، علم ایک ایسا جوہر ہے، علم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ بڑے بڑے چٹان سے آپ ٹکرا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر علم ہے تو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج مدرسہ مدینۃ العلم کے اساتذہ کرام اور یہاں کے معلمہ سے کہ جنہوں نے اپنی محنت و کاوشوں کے ساتھ بے شمار بچوں کو میدان علم میں وہ ہنر ان کے اندر پیوست کیا کہ جسے دیکھنے کے بعد آج واقعی آپ کا دل شاد و آباد ہو گیا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میں قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اسٹیج پہ یہاں کے ممبران، صدر و سیکریٹری، ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہمارے بائیں جانب جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب صاحب علم ہیں۔ کوئی علم حساب میں ماہر ہیں، کوئی علم انگلش میں جو ہے وہ بہت زیادہ ماہر ہیں، کوئی علم ادب میں ماہر ہیں، کوئی علم منطق میں، کوئی علم فلسفہ میں، بے شمار علوم ہے۔ چونکہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، 2 سے 3 منٹ میں آپ میری گفتگو اجمالی خاکہ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں۔ قابل مبارکباد ہیں یہ تمام حضرات جنہوں نے اپنی ذاتی اور اپنی خصوصی رقم سے آپ کی اولادوں کو علم کے زیور سے سنوارنے کے لیے انہوں نے اپنی رقم کو رقم نہیں سمجھا، اور آپ حضرات نے جو قربانیاں اور جو ایثار پیش کیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی دولتیں ہیں، ساری دولتیں ایک طرف، لیکن دین کے لیے کوئی اگر ایثار پیش کرتا ہے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ یہ ہماری جو بچیاں ہیں الحمدللہ ہر اعتبار سے، قرأت کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے اور دیگر فنون کے اعتبار سے، کئی جزوں کے درمیان، کئی اساتذہ کے درمیان، ارباب عقل و دانش کے درمیان انہوں نے جو علم میں فوقیت حاصل کی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت آسان نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ بہت آسان نہیں ہے۔ ابھی آپ نے بہت دیر تک خطاب سماعت کیا جھارکھنڈی صاحب قبلہ سے، وہ آپ سے خود آپ تک پہنچا رہے تھے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا دیں گے تو آپ کا بچہ کامیاب رہے گا۔ یہ بھی وہ آپ کو ذہن دے رہے تھے کہ آپ کی عمر 60 سال 65 سال ہو گئی، ابھی آپ کو جنازے کی نیت کا علم نہیں ہے، یعنی بے شمار باتیں آپ کے سامنے رکھے، مگر قابل مبارکباد ہے ان بچیوں کے وہ والدین جنہوں نے اپنی محنتوں کاوشوں کے ساتھ مدرسے کے اندر اسے حاضر کیا، اور مدرسے کے معلمہ قابل ستائش ہیں، قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی تمام افعال کو ترک کر کے دین کے زیور سے ان بچیوں کو سنوارنے کی کوشش کیا۔ اس لیے آپ حضرات جو شروع سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ اور ایک بات اور بھی بتاتا ہوں، کوئی ایک صاحب یا کوئی ایک معلم
मदरसे में खिदमत करके इतना बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सकता है, उनके साथ बेशुमार मुहिब्बीन के तरफ से इमदाद रहती है। किसी ने मदरसे के लिए ज़मीन पेश की है। बहुत पहले कई साल से जब क़ारी शफ़ाअत साहब क़िबला आपके इस मोहल्ले में खिदमत दीन के लिए तशरीफ़ आए तो शायद कोई हफ्ता का कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता होगा कि यहाँ की खबरें बज़रिए फ़ोन मुझ तक नहीं पहुँचा रहे होंगे। मैं काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ इन्हें कि इन्होंने दीनी मिल्ली खिदमात को अंजाम दिया। आज अवामी सतह पे इन्होंने साबित किया कि अगर हम जीते हैं तो दीन के लिए जीते हैं और दुनिया से भी जाएंगे तो दीन के लिए जाएंगे। और मैंने इशा के बाद से लेकर अब तक खुदा की कसम मैंने देखा यहाँ पे जितने हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई मास्टर हैं, कोई तिजारत ताजिर हैं, कोई इंजीनियर हैं, यानी कोई वकील हैं, कोई काश्तकार हैं, यानी हर एतबार से जिसकी इजाजत शरीयत ने उसे दी है उस कार्य में अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्हक हैं, उन लोगों को मैंने देखा कि मदारिस की मोहब्बत, मसाजिद की मोहब्बत, तलबा की मोहब्बत, बच्चियों की मोहब्बत, इल्म से मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतों को देखने के बाद शमशीर अली रज़वी एक जुमला आपको देकर जाता है, अगर ये मोहब्बत आपकी अगर सलामत रही, खुदा की कसम हजार की भीड़ आपको तलाश करने की जरूरत नहीं है। जो काम एक शेर से हो जाता है वो हजार भेड़ियों से नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि हजारों की भीड़ बेकार है। अगर ये चंद हजरात बैठे हुए हैं और दीनी खिदमत कर रहे हैं तो ये बच्चियां, ये बच्चे, ये हुफ़ाज़े कराम आज भी कामयाब है और इंशाअल्लाह कामयाब होते रहेंगे। ये मेरा मुशाहिदा है, आप इतना आसान ना समझें। मैंने खुद मदरसे की जिंदगी 25 साल जिंदगी मैं सिर्फ मदरसे की खिदमत में गुजारी है। कहीं पे मैंने सदरुल मुदर्रिसीन की हैसियत से, कहीं मुदर्रिस की हैसियत से। अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल जिंदगी में जिस इदारे में मैं काट रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे से बेहतर आपका इदारा मैंने देखा। जब मैं आया था क़ारी शफ़ाअत, जब कुरान की तिलावत हासिल कर रहे थे, मैं इसलिए आपका 2 मिनट लेता हूँ, कुछ जिम्मेदार हजरात बैठे हुए हैं जिनकी मेहनतों को मैंने देखा, जिन्होंने अपने जिस्मानी पसीनों को बहाया, इसलिए नहीं कि मेरा नाम हो जाए, इसलिए कि आखिर दुनिया की दौलत दुनिया में रह जाएगी, मगर जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होगा। मैंने इस मेहनत को देखकर मैं एक सबक आपको देना चाहता हूँ कि इस इदारे को देखने के बाद जो इस इदारे के अंदर रूहानियत मैंने देखी, इस इदारे के अंदर जो मैंने चमक देखा, इस इदारे के अंदर दरो दीवार से लेकर के यहाँ तक जो मैंने महक देखी, शायद अगर मुझे वक्त मिलता तो मैं आपको बताता कि ये महक जो आपको मिली है वो किसी दौलत के जरिए महक नहीं मिली है, वो कुरान की तिलावत के सदके आपको महक हासिल हो रही है। यह हकीकत है। इसलिए आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जो इल्म आपको देना है दीजिए, आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले आप कुरान की तालीम दीजिए। कुरान की तालीम अगर सीने में बस जाती है, कुरान का इल्म अगर उसे हो जाता है, कुरान की तिलावत अगर आपकी बच्चियां करने लगती है, आपके बच्चे करने लगते हैं, तो याद रखना आपके बेटे आपको दौलत नहीं दे सकते, आपके बेटे घर का जायदाद आपको नहीं दे सकते, आपका बेटा आपके जमीन और जायदाद के कागजात तो नहीं दे सकते, लेकिन आपका बेटा, आपका लाडला, आपकी बेटियां आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करेगी, कुरान की तिलावत करेगी। जो दुनिया में दौलत आपको हासिल नहीं हुई है, मरने के बाद आपके बेटों के जरिए ही कुरान का आपके भाई से निजात साबित होगा। इसलिए आप लोग ये आहद कर ले कि कोई भी प्रोग्राम हो, आपके मदरसे का अगर प्रोग्राम हो तो मदरसे का मेयार आप मजबूत रखें, असातिज़ा का साथ दें, बच्चियों के साथ आप ऐसा हुस्न सलूक रखें, ये ना समझें कि ये बच्चियां किसी और की बच्ची है, बल्कि ये तमाम आपकी बेटियां हैं। और आप ये भी ना जाने कि फला की बेटी फर्स्ट डिवीजन आई है, फला की बेटी सेकंड डिवीजन आई है, फला की बेटी थर्ड डिवीजन आई है, अव्वल दोम सानी, ये सब मामला नहीं है। तमाम बच्चियों ने मेहनत करके इस मैदान इम्तिहान में इसलिए कदम रखा था कि हम आला नंबर से हासिल करेंगे। कोई बोले या ना बोले, लेकिन शमशीर का जिस्म का रोंगटा बोलता है कि जितने भी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्टेज पे इनाम लेने के हकदार थे और जितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, सब बच्चे बराबर हैं, सब बच्चियां बराबर हैं। अल्लाह जिसे चाहता है बुलंदी देता है, अल्लाह
जिसे चाहता है दुनिया में उठा देता है। इसलिए पूरा मजमा महक कर बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए हर बाप अपने सीने पे हाथ रख करके ये उम्मीद बांध ले कि मेरी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत कर रही है और मेरी बच्ची के जरिए मुआशरे में अच्छाइयाँ आएगी। जब हमारा घर, हमारी बच्चियाँ सही हो जाएगी, हमारा घर सही हो जाएगा, हमारा मुआशरा सही हो जाएगा। वक्त बहुत कम है, सलातो सलाम पढ़ना है। इंशाअल्लाह कभी बीच में आऊंगा तो मैं कुछ बातें जो राज की बातें हैं इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करूंगा। बोलने में अगर कोई बातें आपको लग गई होगी तो माफ करें। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के कारी शफात साहब क़िबला, कारी शाहनवाज साहब क़िबला, जिन्होंने अपनी जानी खिदमत पेश करके और इनके साथ यहाँ के अराकीन, मदरसे के जो अराकीन, सदरों, सेक्रेटरी, मेंबरान, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने मदरसा मदीनतुल इल्म को इतना फरोग दिया, इतनी मेहनतें की कि जहाँ पे कोई परिंदा पर नहीं मारता है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की रोशनी यहाँ पे आज आपको इल्म की रोशनी नजर आ रही है। इस रोशनी से आपने आपको मुस्तफीज हो रहे हैं। इससे बढ़कर आपको क्या मिला है, इससे बढ़कर आप क्या लेना चाहते हैं? इसलिए मैं काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब क्या नाम है आपको? सुलेमान जहांगीर साहब क़िबला, और ये आफ्ताब साहब क़िबला, और ये आपके मोहम्मद शमशाद साहब क़िबला, और ये आपके गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला, और हमारे ये जो बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, इसमें डॉक्टर साहब वगैरह और दीगर हजरात, ये जितने बुजुर्ग हजरात हैं, काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ आप हजरात को। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात के दीनी मिल्ली खिदमात को प्यारे हबीब के सदके, अपने महबूब के घर के सदके, अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए और दीनी खिदमत दिलो जान से करने की तौफीक अता फरमाए, और हमेशा असातिज़ा के साथ और इल्मी लियाकत को फ़रोग देने की ताकतें आपके अंदर अल्लाह समा दे और आपकी उम्र को उम्र खिज़री अता फरमाए। चंद बातों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। दो शेर पढ़ेंगे कारी शफात साहब क़िबला। बहुत अच्छा मिस भाई साहब, दो शेर पढ़ेंगे, उसके बाद सलातो सलाम होगा। सिर्फ दो शेर पढ़ेंगे इल्म के ताल्लुक से, और बहुत अच्छा अशार लिखते हैं और खुद मिस भाई साहब पढ़ते हैं।